देखो कल तक हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल लिखा देते ना। देखो पहला टॉपिक लिखो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। लिखा था 4-5 गुण, उससे पहले 10 देख लिखो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। The particles of matter are very very small. देखो since देखो since matter is made up of particles, matter is made up of particles, matter is made up of particles. And these particles are very very small, very very small, that very small, full stop देखो, very small के बाद full stop, and these particles cannot be seen, and these particles cannot be seen by our open eye, दूसरा लिखो the particles of matter have a space between them. The particles of matter have space between them. देखो डायरेक्ट लिखो there is a gap between particles of matter. This gap is very very less in solid. This gap is very very less in solid. Comma. This gap is कॉमा देकर नहीं, पहला पॉइंट में ही लिख दो, फिर दूसरा पॉइंट वाइज करके दो। पहला पॉइंट में लिखो दिस गैप इज वेरी वेरी लेस इन सॉलिड, दूसरा पॉइंट में लिखो the gap in liquid is more than solid. The gap in liquid is more than solid. अब तीसरा में लिखो this gap is very very larger in gases, and this gap is very very larger in gases. है ना? इसमें बस इतने लिखो, और बाकी डिटेल में और लिखना रहेगा तो बोलना। इसी गैप के कारण एक पार्ट की दूसरा पार्ट की डिफ्यूज सॉलिड में नहीं करता है, लेकिन लिक्विड में गैप होने के कारण एक लिक्विड दूसरा लिक्विड आसानी से डिफ्यूज कर जाता है ना? गैप रहता है तो गैप में जाके बीच में बैठ जाता है, और गैस में तो बहुत जगह होने के कारण आसानी से दो गैसें आसानी से मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा लिखो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तीसरा में the particles of matter are continuously moving. The particles of matter are continuously moving. Matter are continuously moving. Continuously. CONTINUOUSLY. Continuously moving. लिखो डायरेक्ट लिखो the particles of matter have kinetic energy. 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 So the particles are continuously moving.
So particles of matter are continuously moving, and this movement is negligible in solid, and this movement is negligible. नेग्लिजिबल का स्पेलिंग नेग्लिजिबल, ना के बराबर, नेग्लिजिबल. दिस मूवमेंट इज नेग्लिजिबल इन सॉलिड, बट this movement in liquid more than solid, but this movement in liquid is more than solid, and this movement is maximum in gases. This movement is maximum in gases. इधर तुमको सवाल पूछने का बस काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के सॉलिड पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होते हैं, लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, सॉलिड से ज्यादा होता है, गैस से कम. सब रीजन पूछ जाएगा तो सॉलिड से ज्यादा, लिक्विड से, गैस से लिक्विड में, गैस में जो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होता है. आगे लिखो, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. The particle of matter attract each other. The particle of matter attract each other. Directly लिखो. There is an intermolecular force. There is an intermolecular force. There is an intermolecular force of attraction. There is an intermolecular force of attraction between particles of matter. There is an intermolecular force of attraction between the particles of matter. So these particles attract each other. These particles attract each other. These particles are maximum in solid. These force are maximum in solid and minimum in gases. These force are maximum in solid. These force are maximum in solid and minimum in gases. ठीक है. और लिक्विड में क्या हो जाएगा? सॉलिड से ज्यादा और लिक्विड से अधिक, गैस से कम. अंडरस्टैंड? कोई तो पूछ देगा सॉलिड के पार्टिकल में गैप सबसे कम क्यों होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जैसे पार्टिकल एक दूसरे को चिपका के रखते हैं, तो जब पार्टिकल चिपका के रखेंगे तो जगह कहाँ बचेगा? ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण उसमें गैप कम होता है. देखो अगला, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. देखो, there are three types of matter according to physical classifications. There are three types of matter according to physical classifications. There are three types of matter according to physical classifications. There are three types of matter according to physical classification. पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस. According to physical classification, there are three types of matter. According to physical classification, there are three types of matter. पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस. सॉलिड लिक्विड है तो सॉलिड. देखो, the substance which have the substance or matter which have definite shape and size. definite का स्पेलिंग पता है ना? DEFINIT. डिफिनिट निश्चित. definite shape and size. The substance or matter which have definite shape and size and also different volume.
डिफिट स्पेलिंग गलत है, ठीक से DEFINITE है ना। एंड आल्सो डिफिट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड, इज कॉल्ड सॉलिड। एग्जांपल लिखो, बेंच, चेयर, टेबल, etc। बेंच, चेयर, टेबल, etc। दूसरा लिक्विड लिखना है तो बेटा जैसे जानते हो यूं, फिर भी लिख लो। एक कंपैरिजन कल बताएंगे, है ना। कंपेरेबल स्टडी सॉलिड लिक्विड गैस में कल बताएंगे हम, है ना। देखो, द मैटर व्हिच हैव इंडेफिनिट, द मैटर व्हिच हैव इंडेफिनिट स्पेलिंग INDEFINITE, इनमें अनिश्चित, इनमें अनिश्चित। आई हो गया डिफिनिट DEFINITE, इनमें अनिश्चित, है ना। देखो, द मैटर व्हिच हैव इंडेफिनिट शेप एंड साइज, द मैटर व्हिच हैव इंडेफिनिट शेप एंड साइज but different volume, but different volume, different volume is called liquid, is called liquid। एग्जाम्पल भी लिखो, मिल्क, वाटर, kerosene oil, etc। and gas, जल्दी दिस इज लास्ट फॉर टुडे। गैस लिखो, द मैटर व्हिच हैव इंडेफिनिट शेप एंड साइज, द मैटर व्हिच हैव इंडेफिनिट शेप एंड साइज, indefinite shape and size, and also indefinite volume। Indefinite volume is called gas। एग्जाम्पल को ऑक्सीजन, क्लोरीन, etc। और ये मैटर का स्टेट भी है जी, ठीक है। तुमसे पूछ देगा, है ना, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, तो बोलना देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन इसके अलावा दो स्टेट और होते हैं। मैटर के स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं? 5 होते हैं, है ना। स्टेट्स ऑफ मैटर पूछेगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन है, एंड आल्सो स्टेट्स ऑफ मैटर भी है ना। तो स्टेट्स ऑफ मैटर कितना होते हैं? 5। हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं जनरली, देखो इधर होते तो ऐसे जनरली 3 ही है, लेकिन 5 कर दिया है। पहला सॉलिड स्टेट, स्टेट बनाता अवस्था, है ना। दूसरा लिक्विड स्टेट माने द्रव अवस्था, और तीसरा गैसियस स्टेट, चौथा जो स्टेट है जो अलग है उसका नाम है प्लाज्मा, और पांचवा है BEC, इसको फुल फॉर्म है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। और प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा मैंने आयोनाइज गैस के फॉर्म में, आयोनाइज गैस के फॉर्म में जो रहता है, जो प्लाज्मा स्टेट है, और एक BEC है। तो ये 5 स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन जनरली 3 ही है, ठीक है। तो इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। स्टडी करके आओगे, पढ़ के आओगे।